اور 10 محرم کو اس کو اتنے تیر اتنی تلواریں لگی تھی کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اڑنے والی چیز آ رہی ہے. تو اس لیے ذوالجناح کہتے ہیں. ذوالجناح اس کا نام نہیں تھا. 10 محرم کے بعد مرتجس کو ذوالجناح کہا گیا. ہم جب بھی منت مانگتے ہیں ہم اس گھوڑے سے نہیں مانگتے, ہم اس نسبت کو ذہن میں رکھ کے منت مانگتے ہیں. تو پھر میرا ماننا یہ ہے کہ ذوالجناح وہی ہو جو کسی کو نہ لات مارے اور نہ وہ کسی کو بائٹ کرے. ہیوی بریڈ گھوڑی ہوتی ہے اور ڈنکی سے اس کا کراس ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں مساجد ہیں, اصل میں یہ بھی مسجد الحرام کی شبیہ ہیں. مسجد الحرام جو ہے وہ شبیہ ہے خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ جو شبیہ ہے وہ بیت المکرم جو کہ 7ویں آسمان پہ ہے اس کی شبیہ ہے. ذوالجناح کی بات بتا رہا ہوں. جو شبیہ ذوالجناح سب سے پہلے جو سجائی گئی وہ تیمور لنگ جو بادشاہ تھا, نثار حویلی کے ذوالجناح سے پاکستان میں ذوالجناح کی تاریخ شروع ہوئی ہے. شبیہ ذوالجناح سب سے پہلے نکالی پاکستان کے اندر آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے. ذوالجناح جو ہے شیعہ قائد کے تحت تو حیات ہے اور وہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کے بعد آسمان کی طرف چلا گیا تھا. اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ذوالفقار اور مرتجس دوبارہ ان کے ساتھ آسمان سے اتریں گے. شاہ خصل جو تھا بادشاہ, اس کی مجلی گھوڑی تھی کہ اس کو 14 بندے پکڑتے تھے, 7 بندے ایک طرف سے اور 7 بندے دوسری, مگر وہ پھر بھی سنبھلتی نہیں تھی, اس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا. جن ہارسز پہ RD لکھا ہوتا ہے بڑے اسپیشل ہارسز ہوتے ہیں. سردی میں اس کو ہم دیسی گھی دیتے ہیں, مکھن دیتے ہیں, کچھ حلوہ جات ہیں. اصل میں یہ بریڈ جو ہے یہ صرف آرمی کے پاس ہے. مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں, قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا. ناظرین, جیسا کہ آج 9 محرم الحرام ہے, جیسے یہ محرم شروع ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ذوالجناح کا ذکر سنتے ہیں, ذوالجناح کا نام لوگوں سے سنتے ہیں. ذوالجناح کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, اس کی روایت کیا ہے, اس سب کے بارے میں ہم پوچھنے آج آئے ہیں ساجد بختیاری کے پاس. ذوالجناح کی ہسٹری بتائیں, کیونکہ لوگوں سے نام تو بہت سنا ہے لیکن ہسٹری کا نہیں پتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے جو بھی میری ناقص معلومات ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے ذوالجناح کا تعارف کچھ نہ کچھ کروا سکوں. ذوالجناح کی ہسٹری کا یہ ہے کہ اصل میں آج کے دور میں اس علاقے کو ہم اسپین کہتے ہیں اور اس وقت اس کو غرناطہ کہتے تھے. سرکار امیر المومنین علیہ السلام جو تھے وہ وہاں جنگ کرنے گئے اور روایات میں ہے کہ اصل جو مقصد تھا غرناطہ جانے کا وہ مرتجس نامی جو گھوڑا تھا سرکار کی ریت میں تھا اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور 10 محرم کو میدان کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گھوڑا تھا اس کا نام مرتجس تھا. اصل مقصد اس کو لے کے آنے کا تھا. تو غرناطہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شاہ خصل. تو سرکار نے جب وہ فتح کیا تو اس نے اپنے وزراء کو بلا کے پوچھا کہ میں مسلمان ہو گیا, اسلام اس نے قبول کر لیا, اور اپنے وزراء سے پوچھا کہ میں حضرت علیہ السلام کو تحفے میں کیا چیز دوں. ایک وزیر نے کہا کہ یہ میدان کے بادشاہ ہیں اور میدان کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جو مجلی نامی گھوڑی ہے, شاہ خصل جو تھا بادشاہ اس کی مجلی گھوڑی تھی, اور اس کے لیے روایت میں یہ موجود تھا کہ اس کو 14 بندے پکڑتے تھے, 7 بندے ایک طرف سے اور 7 بندے دوسری طرف سے اس کی لگام کو تھامتے تھے, مگر وہ پھر بھی سنبھلتی نہیں تھی, اس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا. تو جب وہ سرکار امیر علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے تو اس نے 7 چکر لگائے سرکار کے ارد گرد اور اپنا ماتھا جو ہے سرکار کے قدموں پہ ٹیکا, سرکار نے پیار کیا اور تھپ تھپایا اس کو, اور شاہ خصل کو کہا کہ یہ تو نے بے شک مجھے تحفے دی, مگر جو اس کا نومولود بچہ ہے وہ کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ مولا اس کا آپ کیا کریں گے, وہ تو بہت بیمار رہتا ہے, نہ زیادہ پانی نہ زیادہ کھانا کھاتا ہے, اور دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ لیٹا رہتا ہے, تو بیمار ہے. تو سرکار نے کہا یہ جو جنگ ہے نہیں صرف ایک بہانہ تھی, میں اس بچے کو لینے آیا ہوں. تو سرکار کی خدمت میں لے کے آئے. وہ بچہ وہی تھا جو کہ مرتجس, جس کا نام رکھا گیا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سرکار امیر علیہ السلام کوئی جنگ جیت کے آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے صدر دروازے پہ استقبال کرتے تھے, مگر جب مرتجس کو سرکار امیر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں مدینہ تو تقریباً 2 فرلانگ آگے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کا استقبال کیا اور مرتجس کو چوما اور گریہ فرمایا. ویسے تو سرکار کے استقبال میں بہت سارے گھوڑے تھے, مگر 40 کے قریب, مگر مرتجس سے پیار رسول خدا کا وہ سب سے جدا تھا. اچھا, دوسرا ٹھیک ہے, یہ آپ نے ہسٹری بتا دی ذوالجناح, آپ کو خود کب محبت ہوئی ذوالجناح سے اور کیا؟ جی بھائی, میں آپ سے جیسے گزارش یہ کہ بچپن سے بہت جنون تھا
शौक था। तो फिर मौला रखा कब मतलब कि आप सुलझाना मैंने 2010 में लिया था जी। 2010 में? जी, अशल था उसका नाम। उसके बाद मौला ने मुझे उकाब नामी जुलझाना अता फरमाया। उसके बाद एक वर्ल्ड फेमस मेरे पास मौला ने जुलझाना अता फरमाया जिसका नाम सुरखाब था। वो मैंने 14 माह का था जब मैंने ख़रीदा था, वो परवरदिगार ने मुझे ये अता फरमाया था शायद। सर ये जो जुलझना होता है ये कहाँ होता है, इसको किस तरह लेते हैं, क्या अपनी ब्रीड बनवाते हैं या क्या प्रोसीजर क्या होता है? मोमर भाई, ये भी आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आज बताता चलूँ, सदका जारी है। असल में ये ब्रीड जो है ये सिर्फ आर्मी के पास है। RVFC जो है उनकी डायरेक्टरेट को आप एक एप्लीकेशन इनपुट करते हैं डायरेक्टर जनरल जो है उनके नाम से, और उसमें लिखते हैं कि जी हमारा इमाम बारगाह है और हम अपनी इमाम बारगाह के लिए बाकायदा लेटर हेड के ऊपर आप उनको एप्लीकेशन लिखते हैं कि, और उसमें ये ओथ भी लेते हैं कि हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे और हमें ये नवाजा जाए तो वहाँ से अप्रूवल आती है। आर्मी की जी 2 फॉर्म्स हैं, डेपोज हैं। एक रेमाउंड डेपो मोना है और एक रेमाउंड डेपो सरगुद है। ये 2 डेपोज हैं जी, और यहाँ से जो है ये आर्मी की अप्रूवल आती है उनके हेडक्वार्टर से, GHQ से। फिर हम जाते हैं और वहाँ पे एक मखसूस घोड़े जो हैं उन्होंने उनकी कैटेगराइज़ किए होते हैं। उनमें से आप कोई पसंद करें और वो घोड़ा लें और उसके बाद उसको शबीह जुलझना से मंसूब करें। आर्मी से क्यों लेना पड़ता है, क्यों की ब्रीड वगैरह? जी मोहम्मद, रीज़न क्या? मैं आपसे ऑलरेडी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये ब्रीड सिर्फ आर्मी के पास है। आर्मी का मकसद ये नहीं कि वो हमें जुलझना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ये उनकी बाय प्रोडक्ट है। असल में उनका मकसद होता है म्यूल को प्रोडक्शन, म्यूल की, जिसे खच्चर कहते हैं। हैवी ब्रीड घोड़ी होती है और डंकी से उसका क्रॉस होता है तो म्यूल होता है, और वो जो म्यूल होता है वो उनकी कैरेज के लिए यूज़ होता है, पहाड़ों के ऊपर क्रेन्स खींचने के लिए। म्यूल की ये पावर के 2 म्यूल, कोबरा हेलीकॉप्टर, दोनों की ताकत सेम है। ये उनकी बाय प्रोडक्ट है। जो हैवी ब्रीड अच्छे खूबसूरत घोड़े होते हैं, सबसे पहले वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, उसके लिए चार्जर कहते हैं उन घोड़ों को, परेड चार्जर। उसके बाद प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जो सदर पाकिस्तान की बग्गी होती है उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी इन पे ड्राफ्ट हॉर्सेस पे होते हैं। उसके बाद मोना के अंदर अपनी 42 हॉर्सेस की जो है ना बग्गी चल रही है, तो उसके लिए फिर जो एंड की कैटेगरी है वो जुलझना के लिए है। अच्छा, ये शाहजमान आपने कहाँ से लिया, कहाँ से इसको खरीदा? ये मोमर भाई मैंने रेमाउंड ऑफ मोना से लिया था और 2019 में लिया था। ये बेसिकली उनका स्टालियन था, इसकी कास्टेशन करके ये परवरदिगार ने एक मौज़ाना तौर पे मुझे अता फरमाया था ये। और इसके आप देख रहे होंगे शोल्डर पे RD लिखा हुआ है, मेंशन है, अगर आपका कैमरामैन भाई दिखाएं दिखा भी देंगे, वीडियो में भी दिखा। तो RD मीन्स कि जो रिमाउंड डेपो मोना के अंदर इसकी जो है ना पैदाइश हुई थी। तो ये जिन हॉर्सेस पे RD लिखा होते हैं बड़े स्पेशल हॉर्सेस होते हैं। इसकी देखभाल किस तरह करते हैं, क्या इसका? जी मोमर भाई, ये मैंने जहाँ हम ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप अयाम अज़ा के बाद आएँ तो ये पीछे बादशाह यहाँ पे इसकी ये खुरली है जी। इसके लिए माशाल्लाह मैंने ये सारा AC वगैरह सारा इंतज़ाम किया है। मैं तो ख़ुद भी साइस हूँ जी, मेरा छोटा भाई भी साइस है। हम दोनों ने ही बेसिकली इसकी तैयारी, इसकी जेवरात, इस सब की ज़िम्मेदारी मेरे छोटे भाई की है जी। मैं बस मेरी जो ड्यूटी है वो 8 रबीउल अव्वल से शुरू होती है और 1 मुहर्रम तक होती है। खालिद भाई, जो जुलझना इमाम हुसैन की सवारी थी जो, क्या ये जो अब की नस्ल के जो ये जुलझना है, क्या उनसे इनकी नस्ल मिलती? इस्लाम के पास जो मुर्तजिस था वो अरब हॉर्स था, जबकि ये जो है ये ड्राफ्ट हॉर्स मैंने आपको बताया परचौन ब्रीड है। ये पाकिस्तान के अंदर जो इसके पाइनियर थे, इसको लेने वाले नवाब मुजफ्फर अली खान कज़लबाश मरहूम थे। जुलझना के हवाले से उनकी बहुत खदमात हैं और पूरी दुनिया में जो जुलझना का सबसे बड़ा किला है ये अस्तबल जिसे आप कहते हैं, मौला का मंजूरी नज़र, उसको नवाब पैलेस कहते हैं जी। उनके पास था, उन्होंने लोगों को बताया, इसके असलूब सिखाए, बताया। तो इसमें कोई ममासलियत नहीं। वो अरब हॉर्स था, ये ड्राफ्ट हॉर्स है। इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाइट ज़्यादा होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी शहनशाह की सवारी है, हाइटेड है। सर, ये जो इमाम हुसैन की सवारी थी, जुलझना था, ये रवायत उसी टाइम से शुरू हो गई थी, उसी दिन से चली आ रही है या दरमियान में गैप है? मोमिर भाई, असल में जुलझना जो है शिया कायद के तहत तो हयात है और वो 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी के बाद वो आसमान की तरफ चला गया था। और हमारा अक़ीदा है, हम मानते हैं, हमारी बेस इस बात पे कि जब इमाम ज़माना हमारे 12वें इमाम महदी आखिर ज़मान दोबारा उनका ज़हूर होगा तो जुलझना और जुल्फ़िकार जो मौला अली के लिए उतरी थी आसमान से, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी तलवार से
जंग की थी 10 मुहर्रम उल हराम को और मुर्तजिस पे बैठ के की थी। तो ये दोनों जो हैं ये आसमान पे चले गए और इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो जुल्फ़िकार और मुर्तजिस दोबारा उनके साथ आसमान से उतरेंगे। सगीर में जो हमारे बादशाह गुजरे हैं मुग़ल बादशाह तैमूर लंग, अच्छा, इमाम हुसैन से बात तैमूर लंग ने ये जुलजना की बात बता रहा हूँ, जो शबीए जुलजना सबसे पहले जो सजाई गई वो तैमूर लंग जो बादशाह था। असल में वो हर साल करबला ज़ियारत पे जाता, ख़ुद वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ था, मगर उसकी जो अहलिया थी वो अहले तशी थी और वो बड़ा मुअत्तक़िद था और बहुत मानता था अहले बैतुल अलैहिस्सलाम को। हर साल करबला ज़ियारत के लिए जाता था, वो नहीं। तो जिस साल नहीं गया उससे एक साल पहले उसको वहाँ से ताज़िया गिफ्ट हुआ था करबला से, जो कि उसने अपने महल में रखा हुआ था। उसी साल से उसने शबीए जुलजना को बनाना शुरू किया। इस शबी का मतलब होता है कि किसी का अक्स, किसी असल चीज़ का अक्स। एग्जाम्पल मैं आपको यूँ देता हूँ कि हमारे गली मोहल्लों में, हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में मसाजिद हैं। असल में ये भी मस्जिदुल हराम की शबी हैं। मस्जिदुल हराम जो है वो शबी है खाना काबा की। खाना काबा जो शबी है वो बैतुल मुकर्रम जो कि 7वें आसमान पे है, बिल्कुल खाना काबा के ऊपर उसकी शबी है। तो शबी हाथ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। हम हिंदू नहीं हैं कि हम इस घोड़े को पूज रहे हैं या हम ताज़िए को पूछ रहे हैं। ये शबी है जो कि याद दिलाती है उस जानवर की जो कि 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था। और जब सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग कर रहे थे तो वो बाकायदा तौर पे सरकार के साथ, क्योंकि उसके हाथ थे नहीं, अपने मुंह से और अपनी टांगों से कितने हज़ार उसने फौजी जो हैं वाकिल जहन्नुम किए और अपने मुंह से सरकार इमाम हुसैन के जिस्म से तीर जो था वो खींचता था। और यही वो जुलजना था। असल में जुलजना का तो मतलब है उड़ने वाला, जिसके पर हों। मुर्तजिस नाम था और 10 मुहर्रम को उसको इतने तीर, इतनी तलवारें लगती थी कि दूर से ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उड़ने वाली चीज़ आ रही है। तो इसलिए जुलजना कहते हैं। जुलजना उसका नाम नहीं था। 10 मुहर्रम के बाद मुर्तजिस को जुलजना कहा गया और हम उस जुलजना की शबी बनाते हैं, तो इसलिए इसको शबी जुलजना कहते हैं। आपने बताया बरे सगीर से जिस तरह जिस बादशाह ने तैमूर लंग ने ये शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में ये रवायत कब आई? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि जो कज़लबाश ख़ानदान है, इन्होंने जुलजना की बरामदगी शुरू की है निसार हवेली से। इनके मैंने आपको बताया कि निसार हवेली के जुलजना से पाकिस्तान में जुलजना की तारीख शुरू हुई है। नवाब साहब थे, फिर उनके वालिद साहब थे, फिर उनके वालिद साहब थे। तो माशाल्लाह उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने शबी जुलजना सबसे पहले निकाली पाकिस्तान के अंदर, आज से तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले। और फिर उनकी देखा देखी सबको शौक़ हुआ और फिर उनकी देखा देखी मुझ जैसों को शौक़ हुआ और अब आपको शौक़ हुआ। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि हम चूमते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, लेकिन बल्कि आपने पूजने का जिक्र किया था, चूमने का नहीं। चूमते तो हैं आप, और लोग हाथ लगाकर करीब आकर जुलजना के मन्नत मांगते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है ये, इनसे जो मन्नतें मांगते हैं वो उनकी पूरी भी हो जाती हैं। इसकी लॉजिक क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपके इसका बारे में क्या ख्याल है, ये ठीक है जी? ये मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये चीज़ मंसूब हो गई ना, तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत काबिल अकीदत है। हम जब भी मन्नत मांगते हैं, हम इस घोड़े से नहीं मांगते, हम उस निस्बत को जहन में रख के मन्नत मांगते हैं। अलैहिस्सलाम, मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इंशाअल्लाह अगले साल अपनी मन्नत उतारने के लिए मैं कोई देख दूँगा, मैं यतीमों को खाना खिलाऊँगा, मैं कुछ मजलिस के अंदर तबर्रुक में हिस्सा डालूंगा। हम खुदा ना करे ये नहीं कि हम इस घोड़े से कुछ मांग रहे हैं, नहीं। जब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गया तो बस फिर हमारे जहनों में, हमारे अज़हान के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत होती है। साल ये ज़िंदा रहता ज़्यादा, और क्या एज क्या होती है जी? एवरेज जो घोड़े की एज है वो 17 to 20 ईयर्स है जी। एक जुलजना था, बड़ी कदीमी हमारी बारगाह है हवेली अलिफ शाह, जहाँ से 40वें का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है। उनके पास एक जुलजना था, उसकी भी तकरीबन 35 ईयर्स ओल्ड था और उसके लिए बात बल्कि बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा कि उसको दफना दिया गया था हवेली में। 11 साल बाद वहाँ डिगिंग हुई, खुदाई हो रही थी और जब खुदाई की तो उसकी टांग नज़र आई और ऐसा लगा जैसे उसे कल दफन किया था। तो ये ज़िंदा मोज़े हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब, ये बिल्कुल ज़िंदा मोज़े हैं और ये इसके बहुत गवाह हैं। अच्छा, जब ये इंतकाल कर जाता है, जब ये इस वफ़ात पा जाता है, तो फिर क्या प्रोसीजर क्या होता है, दफनाते हैं या क्या करते क्या? जी भाई, इसको बाकायदा प्रॉपर एक इसको तक जैसे तदफीन होती है वही इसका अमल है। बाकायदा जो है तदफीन के लिए लोग भी इकट्ठे होते हैं जिस तरह आम करते हैं, जो जिनसे मेरा इसी जगह पे मेरे एक जुलजना का इंतकाल हुआ था, तो लाहौर के जितने भी जुलजना बरदार सब आए थे।
इस पे जो सजाते वक्त चादर होती है वो उसको एज ए कफन और उसको प्रॉपर एक एहतराम के साथ इज़्ज़त के साथ उसको उसकी तदफीन की जाती है। जी तो नाजरीन, साजिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें जुलझना की पूरी हिस्ट्री बताई, किस तरह ये जुलझना बरसगीर में आया, बरसगीर से बाद पाकिस्तान में आया। तो ये बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में भी ये सवाल थे, तो मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं इन सवालों को पूछूं, लेकिन साजिद भाई ने इनके बड़े अच्छे जवाबात दिए और बड़ी डिटेल में बताई। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दूसरे भाइयों के साथ, ताकि इस तरह की जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों तक मज़ीद पहुंच सके। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।